Hello students. Today we are going to discuss the applications of the hyperconjugation. Okay. So topic is applications of hyperconjugation. तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि hyperconjugation come into the existence when alkyl group containing at least one alpha hydrogen remains directly linked to the unsaturated system or to the carbon containing positive charge or to the carbon containing a unpaired carbon. Okay. So here the basic applications of the hyperconjugations are: it is in explaining the relative stability of the alkenes, in explaining the relative stability of the carbocations, or finally in explaining the relative stability of the free radicals. Okay, so in today's video we are going to discuss these one by one. See, firstly we'll discuss the in relative stability of alkenes. Okay. So we are discussing application. The first application of hyperconjugation is in determining the relative stability of the alkenes. See, this is an see, remember that according to this concept, hyperconjugation, according to the hyperconjugation, this the stability of alkenes, this remains directly proportional to the number of alpha hydrogen atoms that alkene have. Means alkene which will have more number of the alpha hydrogen, which will be more stable. Okay? Why the stability depends over the number of alpha hydrogen? So the reason is, as the number of possible no bond resonating structures possible for alkene will remains equal to the number of alpha hydrogen atoms alkene have. See, जिस एल्कीन के पास जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके लिए उतनी अदर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगी. ओके, चलिए एग्जांपल से देखते हैं. Here this is the simplest alkene, CH2 CH2. Here it is C double bond C, H H H, and here it is CS3. This time, okay, C double bond C. Here it is CS3 CS3 H H C double bond. Okay. It's better. I should write here H. It must be CS3. Here it is CS3 CS3 H
CH3, and finally here C double bond C, CH3, CH3, CH3 and CH3. These are the different alkenes. See here, these are the different examples of the alkenes. And as you know, अल्फा कार्बन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं. So here the number of alpha carbons atoms, यहां पर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कोई भी कार्बन नहीं है, तो हियर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इज 0. यहां पर देखिए, यहां पर द functional group and is having one adjacent carbon, तो यहां पर number of alpha carbons are 1. यहां पर देखिए, इस केस में फंक्शनल ग्रुप के ये adjacent carbon हो गया अल्फा, this one is also adjacent alpha, तो in this case there are 2 alpha carbons. See, in this case functional group, this one is alpha carbon, this one is also alpha carbon, this one is also alpha. Here there are 3 adjacent carbons. In this case there are 3 alpha carbons. And finally, इस केस में लिखिए, there are 4 alpha carbons. Okay? और हाइड्रोजन remains linked with the alpha carbon. उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. तो यहां पर number of alpha hydrogen atoms means the hydrogen remains linked with the alpha carbon. That one is alpha hydrogen. यहाँ देखिए, एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 1. यहाँ पर अल्फा कार्बन इज हैविंग 3 हाइड्रोजन. यहाँ पर 3 plus 3 6, 3 plus 3 6 plus 3 9, and here there are 12. See, अब देखिए, as per the hyperconjugation, the stability of the alkenes is proportional to the number of alpha hydrogens that alkene is having. See, in this direction, the as the number of alpha hydrogens is continuously increasing, ठीक है, तो therefore इस डायरेक्शन में जो स्टेबिलिटी है of alkenes, this also increases. ओके, और ये क्यों बढ़ रही है? विद इंक्रीज इन व्हाट? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ओवर एल्कीन. इज इट क्लियर? तो इससे मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं, रिमेंबर वी विल मेक अ कंक्लूजन हियर, कि जो स्टेबिलिटी है ऑफ दिस alkenes thus increases with increase in alkylation. Conclusion है, stability of the alkenes increases with increase in alkylation. As the number of alkyl group in alkene increases, so stability also increases, because with increase in alkyl group number of alpha hydrogens also increases. और ध्यान रखना, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ही उस एल्कीन के लिए नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं. ठीक है, अब हम इसके लिए नंबर ऑफ कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर अगर माना हमारा एक एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, हियर CH3H, CH3H, okay, and this one is C double bond C, here CH3, CH3H and H. This one is but2ene. This one is also but2ene. Okay. These are our alkenes.
ठीक है, दिस वन इज सिस ब्यूटूइन एंड दिस वन इज ट्रांस ब्यूटूइन। दोनों के पास जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं, देखो 3 ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, तो इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। दोनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो इन दोनों में से अगर सिस और ट्रांस एल्कीन का कंपैरिजन करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जो ट्रांस एल्कीन है, ठीक है, आर इज दिस वन इज मोर स्टेबल, और ट्रांस एल्कीन या आप कह सकते हैं जो ट्रांस आइसोमर है, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। ओके, मीन्स जैसे सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन में दिस ट्रांस ब्यूटूइन will be, this one will be more stable, ठीक है। और why the trans butene will be more stable? This is it's due to its more symmetric structure। तो हमेशा सिस ट्रांस आइसोमर में, एल्कीन्स में ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑल्दो बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए now we will discuss the how to draw the possible no bond resonating structures or hyperconjugating structures for the alkenes. Okay, see, this is the simplest alkene. ठीक है, दिस डज नॉट हैव एनी अल्फा कार्बन, इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। तो इसके लिए फॉर दिस नो अदर नो बॉन्ड resonating structures are possible। ठीक है, अब देखिए, अब हम लेते हैं यहां पर एक अलग दूसरा एल्कीन, और इस बार इस एल्कीन के पास यहां पर इसके पास ये एक अल्फा कार्बन है और इस कारण इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो होगा क्या, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप जिसमें कि CH बॉन्ड हो, वो CH बॉन्ड के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिलोकलाइज हो जाते हैं। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड की ओर रिलीज हो जाएंगे, ये यहाँ से इधर को आ जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज होते हैं एडजेसेंट पाई बॉन्ड में यहाँ पर पोलराइजेशन होता है। ध्यान रहे, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो as these electron will release here, this pi electron will get polarized and will move towards the terminal carbon। आपको यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगी। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, now in between the here single bond will left, और क्योंकि इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं तो this carbon will become electron rich and will have now negative charge। और यहां पर कार्बन here as the 2 electrons of this alpha CH bond shifted in between the carbon, 2 carbons, double bond will form। और यहां ये कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन, as this third हाइड्रोजन यहां इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो चुके हैं, CH बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ रिलीज हो चुके हैं, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रहे, ये H+ यहां से मूव नहीं कर सकता बिकॉज ये जो H+ है स्टिल इस पाई क्लाउड के साथ फॉर्मली हेल्ड रहेगा। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, देखो इसके लिए
ये एक अनदर स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन इस स्ट्रक्चर में C और H के बीच में बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये यहां पर स्टिल ये जो CH बॉन्ड की ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां से यहां रिलीज हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, एक और स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी। एज दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर, सिंगल बॉन्ड विल फॉर्म हियर। नाउ दिस H प्लस हैज हाइड्रोजन हैज लॉस्ट इस इलेक्ट्रॉन, H प्लस आ जाएगा। यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड है, यहाँ ये डबल बॉन्ड C और दिस द हाइड्रोजन हियर C H and this carbon bears negative charge। देखो ये H प्लस अभी भी यहाँ से फ्री नहीं हो सकता, मूव नहीं कर सकता, बिकॉज ये भी अभी पाई इस पाई क्लाउड के साथ स्ट्रिक्टली हेल्ड है। नाउ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दिस CH बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज हियर, और एक और स्ट्रक्चर नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ CH बॉन्ड के बीच का इलेक्ट्रॉन टूटा है, ये H इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और CH या सिंगल बॉन्ड CH और H इस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होता है, यहाँ के पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस जो पोलराइज होकर के किनारे चले गए थे वापस आ जाएंगे, यही स्ट्रक्चर मिल गई। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए कितनी अदर रिजोनेटिंग नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 1 2 3, बिकॉज इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ पर 3 अदर नो बॉन्ड और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से आप नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जैसे दूसरा एग्जांपल था हमारा C डबल बॉन्ड C, और अब की बार यहां पर 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके लिए 6 अदर resonating structures are possible। अगर हम यहां पर एक और CH3 जोड़ दें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 9 अदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो जाएंगे, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर यहां भी जोड़ दें तो 4 अल्फा कार्बन हुई, तो 4 3 12 अल्फा हाइड्रोजन हुई, उसके लिए 12 अदर नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो जाएंगी, और इस कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके लिए जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है, ठीक है, ये काफी लेस होता है, स्मॉल होता है देन मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंपैरिजन में काफी कम वीक होता है ये। इसी कारण माना सपोज करो 2 एल्कीन्स हैं, एक हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टेबलाइज है, जबकि दूसरा जो है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, तो जो एल्कीन रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगी दैट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, या कोई भी स्पीसीज, माना कार्बोनियम आयन का देख रहे हैं हम, तो अगर एक कार्बोनियम आयन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है जबकि दूसरा रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो जो कार्बोनियम आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, ठीक है,